مجھے کہا تھا کہ آپ ہی مجھے نکال سکتے ہو. اگر مجھے پتا ہوتا کہ گورنمنٹ اتنی نااہل ہے تو خدا کی قسم میں خود کچھ کر لیتا. افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے. جب یہ حادثہ ہوا، نیرو بانسری بجا رہا تھا. ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا. عمران نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی. تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، مگر نہ قوم آپ کو گریبان سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالے گی. پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے. آج کے دور کا پیبلو ایسکوبار ہمیں بتا رہا ہے کہ نیرو سے ہو رہا تھا. 30 سال انہوں نے حکومتیں کی اور آج ہمیں سے سوال پوچھ رہے ہیں. آج انہوں نے مری کے اوپر، آج انہوں نے پنجاب کے اوپر اپنے وسائل خرچ کیے ہوتے. جناب اسپیکر، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. یہ جو بولے ہیں جن کی حیثیت اور قد نہیں ہے بات کرنے کے، آج آ کر کے اس حکومت سے حساب مانگنا چاہتے ہیں جنہوں نے 3 سال میں 13 نئے ریزورٹس بنا دیے. جب مری میں لوگ مر رہے تھے تو آج کا نیرو بانسری بجا رہا تھا. ایک نیرو اسلام آباد میں سو رہا تھا، دوسرا بلدیاتی انتخابات کی دھاندلی میں مصروف تھا. شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں حکومت پر ٹیکا کر وار. کہا سانحہ مری حادثہ نہیں قتل ہے اور ذمہ دار وزیر اعظم ہے. مری سانحے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. حکومت نے سانحہ مری کو ویسے ہی ڈیل کیا جیسے وہ ملکی معیشت کو تباہ کر رہی ہے. سانحہ مری سے پہلے 1 لاکھ گاڑیوں کے مری میں داخلے پر خوشی کا ٹویٹ کرنے والے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جوابی تقریر میں کہا کہ آج کے دور کا پیبلو ایسکوبار بتا رہا ہے کہ نیرو سو رہا تھا. 30 سال حکومت کرنے والے آج پوچھ رہے ہیں کہ انتظامات کیوں نہیں کیے. یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. ہر چیز نئے سرے سے بنانی پڑ رہی ہے. اگر پچھلے حکمرانوں نے محل کھڑے نہ کیے ہوتے اور مری پر وسائل لگائے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وزیر اعظم سے لے کے ان کے سارے عہدیدار جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. وزیر اعظم خود اپنا جو سوشل میڈیا میسج ہے اس میں لکھتا ہے کہ ان کو ویدر کا پتہ کرنا چاہیے تھا. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم اور سارے عہدیدار ہر حادثے پر متاثرین کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں. بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا جب چترال میں وزیر اعظم کی فیملی ممبر برے موسم کی وجہ سے پھنس گئی تھیں تو ان کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا گیا. فوج سے ہیلی کاپٹر منگوا کر ریسکیو کیا گیا. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہر شہری کو بچانا چاہیے. وزیر اعظم کے گھر سے 2 گھنٹے دور مری میں سانحہ ہوا. کسی کو تو نوٹس لینا چاہیے تھا. انتظامی کوتاہی کی بات ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ذمہ داری وفاقی حکومت پر یا بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری مری کی تحصیلی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک ادارہ NDA میں بھی ہے، اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہے. محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشن گوئی کی جا چکی تھی، تو اس لیے حکومت کے جو بھی ادارہ آتا ہے ان سب کو اس پر الرٹ ہونا چاہیے تھا. ایک ریڈ الرٹ جاری کرنا چاہیے تھا. مری واقعے پر اپوزیشن ہی نہیں اتحادی بھی حکومت کے خلاف. قومی اسمبلی کے فلور پر MQM نے مری واقعے کا ذمہ دار وفاقی اور صوبائی حکومت کو قرار دے دیا. MQM کے رکن صلاح الدین نے کہا کہ سب سے بڑی ذمہ داری مری کی انتظامیہ کی ہے. NDA میں بھی واقعے کی ذمہ دار ہے. حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر طوفانی برفباری ہو سکتی ہے. حالانکہ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی.
पीपल्स पार्टी का मिनी बजट और महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, झूठे दावे करने वालों के जाने का वक्त आ गया। हुकूमती बेंचेस पर बाज़मीर लोग भी अपोजिशन का साथ दें। काफ़ी सारे मेहमान फंसे हुए हैं, तो हाई अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि हमें दूसरे यहाँ से निकाला जाए। 2 दिन से मुसलसल राब्ते कर रहे थे DCO साहब से, हिसाब से वो गाड़ी आ रही और हमारे पास आज पहुंची। तो हमारी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, हम तो सेफ थे, गाड़ी हमारी बिल्कुल वो पैक थी। आज उन्होंने मशीनरी मंगवा के हैवी किस्म की और आज हमें रेस्क्यू किया वहाँ। मरी में निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आने से पहले बारिश और हल्की बर्फबारी, बेशतर सयाह मरी से निकल गए, इलाका मकीनों की मुश्किलात बरकरार। बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी, पाइपलाइंस में पानी जम जाने से शहर में पानी की शदीद किल्लत। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया। नथिया गली में बर्फानी तूफान के दौरान होटल्स में मुकीम अफराद भी फंस कर रह गए। सोशल मीडिया पर हुकूमत से मदद की अपील। पुलिस के मुताबिक नथिया गली बाजार के होटल्स में चंद सयाह मौजूद हैं। गलियात से 80 से 85% सयाहों को निकाल लिया गया है। मरी और गलियात में दाखिले पर पाबंदी में मजीद 24 घंटों की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म के दौरान अफगानिस्तान फरार होने से पहले खुरासानी मीरानशाह में दहशतगर्दी मरकज चला रहा था। खुरासानी पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस था। वो शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद कलअदम TTP का तर्जुमान बना। सरबराह CTP मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ मिलकर खुरासानी ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों की प्लानिंग की। हाल ही में उसने पाकिस्तान में कार्रवाइयों का इशारा दिया था। सारी रसीदें दे दी, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया है। तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा, कहा 31 करोड़ फंडिंग में से 15 करोड़ की रकम 2 दफा जाहिर की गई। 2 दफा जाहिर की गई रकम का मामला अगली समात में क्लियर कर देंगे। अब बाकी सियासी पार्टीज भी अपनी फंडिंग की रसीदें जमा करवाएं। इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा, शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती, उन्होंने इतनी TTs लगाई। नून लीग अरबों रुपए की बैरूनी फंडिंग का हिसाब दे। शाहजेब कत्ल केस का सजा याफ्ता मरकजी मुजरिम शाहरुख शतोई जेल के बजाय कई माह से कराची के निजी अस्पताल में रह रहा था। जेल से गिजरी के निजी अस्पताल में महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। जराये का कहना है इसके पीछे सिंध की आला शख्सियत का किरदार था। कमरुल इस्लाम अस्पताल शाहरुख शतोई के खानदानी किराए पर हासिल कर रखा था, जिसकी बलाई मंजिल पर सजा याफ्ता मुजरिम मुकीम था। शाहरुख शतोई ने शाहजेब खान को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद जेल इंतजामिया हरकत में आ गई। शाहरुख शतोई को अस्पताल से वापस जेल भिजवा दिया गया। हाई प्रोफाइल मर्डर के मरकजी मुजरिम को किसके अहकामात पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत सिंध कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल मुंतकिली से लालमी का इजहार कर रहा है। जराए महकमा सेहत का कहना है कि शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा दाखिला का भी शाहरुख की अस्पताल मुंतकिली के अहकामात जारी करने से इनकार। जराए के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट और जेल डॉक्टर की सिफारिश पर कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी IG जेल खानाजात का इख्तियार है। मसला जमीन साड़ी ते कब्जा करना चाहते, रस्ता वलना चाहते असी मना किया ते सानू छत तो दी दीवार तोड़ के खिड़की तोड़ के वट्टे मारदे डंडे मार लैके ते अंदर आ वड़े ने साडे। असी इन्हां को डर के ते वाशरूम च चले गए। उथों दरवाजे बंद किए, उथों भी इन्हां सानू कढ के दरवाजे तोड़ के कढ के ना ते पहला इस कमरे च मारिया, फिर वेड़े च मारिया, फिर मैनू खिंच के नूर सैन लैके गया। सियालकोट की मोहम्मद खातून पर तशद्दुद करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस ताहाल 3 मरकजी मुलजिमान तक पहुंचने में नाकाम। चप्पलों डंडों से खातून को बांधने वाले 4 खवातीन मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दी गई। प्लॉट के तनाजे पर 15 अफराद ने मोहम्मद खातून को घर पर दावा बोला।
दरवाजे खिड़कियां तोड़े, बाथरूम का दरवाजा तोड़कर छुपी खातून को निकाला, पहले घर पर मारा, फिर घसीटते हुए चौक ले गए, बहिमाना तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक 12 मुल्जिमान पकड़ लिए, दीगर के लिए छापे जारी। गुजरात में पालतू शेर ने हमला करके 11 साला बच्चे को जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में बच्चा इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल। मुकदमे में नामजद शेर के मालिक और एक मुलाजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एक मुलाजिम गुज़श्ता रोज ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जख्मी बच्चे एहसान ने बताया था कि वो काजिम के साथ डेरे पर शेर देखने आया था कि शेर ने जख्मी कर दिया। शेर का मालिक तो पुलिस को नहीं मिला। मालिकान ने शेर को डेरे से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ओमिक्रॉन ने कराची में फैलाव की घंटी बजा दी। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 15.5% से ऊपर चली गई। लाहौर में केसेस की शरह 7.5 और गिलगित में 6.5% से ज्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 3.6% हो गई। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 10 दिन हो गए सरकारी टीवी और ARY ने ताहाल PSL मुआहदे की तफसीलात आवाम के सामने पेश नहीं की। अगर छुपाने को कुछ नहीं तो जजिस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? सरकारी टीवी और ARY छुपाना क्या चाहते हैं? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? क्या कोई ज़ाब्ते तोड़े गए हैं? क्या छुपाया जा रहा है? सरकारी टीवी हकायक छुपाकर गुमराह कर रहा है। सरकारी टीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ए स्पोर्ट्स को ICC T20 और PSL 7 और 8 के लिए दी गई मंजूरी शेयर क्यों नहीं कर रहा? ARY के हक में रेवेन्यू शेयरिंग की मंजूरी के लिए कायदे और ज़वाबित में तब्दीली की मंजूरी किसने दी? किसने ARY और ग्रुप M के कंसोर्शियम को सिर्फ ARY से तब्दील किया? इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। आप इस शहर को अशराफिया के लिए बना रहे हैं। बड़े आदमी को सिर्फ नोटिस करते हैं और झुग्गियों वालों के पीछे पड़े हैं। कच्ची आबादी वालों का क्या कोई हक नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सर्दियों में सेक्टर E11 से झुग्गियां खत्म ना करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर अल्लाह ने रिमार्क दिए कि ये वाहिद शहर है जिसे वजीर आजम और विफाकी काबीना सुपरवाइज करती है। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं। लगता है CDA भी बेबस है और विफाकी हुकूमत भी। CDA को तो अपने कवानीन का ही नहीं पता। बनी गाला के फैसले में हमने आपको बताया कानून क्या है। चेयरमैन CDA को कल तक कम आमदनी वालों के लिए रिहायशी स्कीम से मुतल्लिक आगाह करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में फौरी गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 7 मंजिला पोर्शंस के लिए बिजली, पानी, गैस कनेक्शन देने से भी रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि आगरा ताज में तो 8 मंजिला पोर्शन बन रहे हैं। DG SBCS 7 रोज में रिपोर्ट के हमरा जाती हैसियत में तलब। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि भारत में हिंदुत्व जत्थे पूरी ढिठाई और आज़ादी से मजहबी अक़लियतों पर हमलावर है। मोदी सरकार के ये शिद्दत पसंदाना अज़ाइम हमारे इलाकाई अमन के लिए हकीकी खतरा है। अक़लियतों के कत्लेआम के लिए की गई अपील पर मोदी सरकार की खामोशी सवालात को जन्म देती है। वक्त की नज़ाकत का तकाजा है कि आलमी बरादरी इसका नोटिस ले और कार्रवाई करे। भारतीय रियासत झारखंड में एक नफ्सियाती मरीज मुसलमान शख्स को बीजेपी के कारकुनों ने बुरी तरह मारा पीटा, बाल खींचे, सड़क पर थूक कर वापस इस थूक को चाटने को कहा और जबरदस्ती हिंदू मजहब के नारे लगवाए। मुतासरा मुसलमान शख्स पर इल्जाम लगाया कि उसने वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना तौर पर बदज़बानी की है। ताज़ा वायरल वीडियो में भारतीय मुसलमान पर जुल्म की इंतहा देखी जा सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि ये तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں رضا باخر کا کہنا تھا کہ وہ پہلے IMF کے لیے کام کرتے تھے، اب وہ IMF چھوڑ چکے ہیں۔ کیا کسی عالمی ادارے میں کام کرنا جرم ہے؟ رضا باخر نے کہا کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کسی دوسرے ملک کی مستقل رہائش ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان معاملات کو لے جا کر جعلی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مادر پیدر آزاد نہیں ہوگا، حکومت کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ۔ اجلاس میں بتایا کہ IMF نے کہا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے، حکومت نے ویسے بھی 2.5 سال سے مرکزی بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اجلاس میں شوکت ترین اور احسن اقبال میں نوک جھونک۔ شوکت ترین نے کہا کہ روپے کو مصنوعی طریقے سے روک کر $60 ارب کا نقصان پہنچایا گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ 40% روپے کی قدر میں کمی کر کے کون سی برآمدات بڑھائی گئی؟ یہاں وزیر خزانہ ممبران پارلیمنٹ کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کراچی میں دل کے عارضے کے سب سے بڑے اسپتال کا گیٹ بند، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے۔ ملازمین نے گیٹ بند کر دیا، مریضوں پر دروازے بند، اسپتال کے تمام شعبہ جات میں کام ٹھپ۔ NICVD احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے، ملازمین کو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس بقایا جات ادا کیے جائے، میرٹ پر سینیورٹی کے مطابق ترقی دی جائے۔ سربراہ NICVD ڈاکٹر ندیم قمر کا کہنا ہے کہ ملازمین کا احتجاج جائز نہیں، مریضوں کو پریشان کرنا درست نہیں، جیسے ہی سندھ حکومت سے فنڈ ملیں گے الاؤنس دے دیے جائیں گے۔ بہت اچھا ہے، سفر بھی اچھا ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے۔ بہت بہترین پایا جی، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ اور مجھے بہت بہتر لگ رہا ہے اور کرایہ بھی مناسب ہی ہے۔ کراچی میں گرین لائن بس عوام کے لیے کھلنے پر شہریوں کا خوشی کا اظہار۔ جدید، آرام دہ اور ٹینشن فری سفر کی سہولت میسر آ گئی۔ 80 بسیں روزانہ سرجانی سے نمائش تک 22 اسٹیشن پر مسافروں کو سہولت فراہم کریں گی۔ کم سے کم کرایہ 15 روپے اور زیادہ سے زیادہ 55 روپے ہوگا۔ دادو کی میڈیکل کی طالبہ نے بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ ڈاکٹر عصمت کی موت پر تحقیقات کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ مرکزی ملزم محمد شمن سولنگی کی بیوی سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ مرکزی ملزم قانون کی گرفت میں نہ آ سکا۔ 4 روز پہلے ڈاکٹر عصمت کے والد نے 5 افراد پر مقدمہ درج کروایا تھا۔ ملزم شمن سولنگی پر جعلی نکاح نامہ بنا کر بلیک میل کرنے اور لڑکی سے 90,000 روپے ہتھیانے کا الزام ہے۔ ڈاکٹر عصمت کے بھائی کا کہنا ہے کہ ملزم شمن اور اس کے بیٹے نے کیس واپس نہ لینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ شمن سولنگی نے جعلی نکاح نامہ بنا کر عصمت کو بلیک میل کیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ DIG حیدرآباد اور SSP دادو کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دن دہاڑے نجی بینک کی ATM مشین توڑ کر ڈکیتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم شکیل کلہاڑی کے وار کر کے ATM مشین توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بروقت اقدامات سے سانحہ مری کو روکا جا سکتا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان کا حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اجلاس میں سوال۔ وفاقی وزراء ضلعی انتظامیہ کے حق میں بول پڑے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا پوری صورتحال کے دوران انتظامیہ اور پولیس نے بہترین کام کیا، حالات پولیس کے کنٹرول سے باہر تھے، رینجرز طلب کرنا پڑی۔ وزیر اعظم نے کہا سیاحت بڑھ گئی ہے، انفراسٹرکچر کئی دہائیاں پیچھے ہے، نئے ہوٹلز کی تعمیر کے ساتھ پرانے اسٹرکچر کو بہتر کرنا لازمی ہے، بڑھتے ہوئے سیاحوں کو معیاری رہائش کی فراہمی چیلنج ہے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ ہوئے معاہدے سے ترجمانوں کو آگاہ کیا۔ شوکت ترین نے بتایا کہ مہنگائی میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ مسیح برادری کے نمائندوں کی دھرنے میں آمد، شرکا سے اظہار یکجہتی۔
जमात इस्लामी ने बनारस चौक और नुमाइश चौरंगी पर भी बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा है कि शहरियों को बूस्टर डोज लगाने का अमल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आवाम से अपील की कि वो अपनी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करें। पीपल पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने वज़ीर ख़जाना से सेल्स टैक्स, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज का जायजा मौखर करने से मुतालिक तफसीलात का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से तवक्को भी नहीं थी कि वो सानेहा मरी की जिम्मेदारी कबूल करेगी। हालांकि वज़ीर आज़म को आज ऐवान में आकर कौम से माफी मांगनी चाहिए थी। JUSA के मौलाना असद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमती वजीर की कौमी असम्बली में तकरीर पर इतना ही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये भी कहा, अपोजिशन मुत्तफिक का तौर पर सानेहा मरी पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती है। लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकानले ने कहा है कि 2018 से 2020 तक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सिविलियन इमदाद दी। सरमाया वहीं लगता है जहां कवायद शफाफ हों। रोजनामा जंग और दी न्यूज को दिए गए कि इंटरव्यू में अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि पंजाब में 6 जामियात के साथ शराकत दारी की। तलबा को अंग्रेजी सिखाई जा रही है। जनूबी पंजाब में 10,000 नौजवानों के लिए कारोबारी मौके पैदा किए हैं। पाकिस्तान को कोरोना की तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख वैक्सीन की खुराकें दी हैं। विलियम के मैकानले ने कहा कि ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कारोबार, सेहत, गवर्नेंस, तवानाई, पंजाब में पुलिस, अदालती और जेल के शोबों की मजबूती के लिए भी ताउन किया। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना है कि पंजाब में बैरूनी सरमाकारी के बेशुमार मौके हैं। पंजाब अगर कारोबार के साथगार मौके को उजागर करे तो ये अमरीकी निजी शोबे की सरमाकारी के लिए और भी पुरकशिश मकाम बन सकता है। इतनी ज्यादा हुई कि वहां पर ब्लेजर्ड आ गया। जब बर्फ का तूफान आया तो उसके अंदर ये गाड़ियां फंस गई। आज तक मरी में कोई मौत भी बर्फ में फंसने की वजह से कभी नहीं थी। बर्फानी तूफान की रात मरी में सिर्फ 17 इंच से भी कम बर्फ पड़ी, उसे भी हटाया न जा सका। कई फुट बर्फबारी के राग अलापे गए और लोग बर्फानी तूफान में फंसकर जिंदगियां खो बैठे। सानेहा मरी पर सवालात उठ गए। सिर्फ 17 इंच बर्फ नहीं हटाई जा सकी। महकमा मौसमियात ने भांडा फोड़ दिया। बताया कि 7 जनवरी को सबसे ज्यादा 17 इंच बर्फ पड़ी। उससे पहले 5 जनवरी को 8 इंच और 4 जनवरी को 6 इंच बर्फबारी हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मरी में 10 फुट बर्फबारी का दावा कर चुके हैं। अपनी बात पर कायम रहते हुए शहबाज गिल ने महकमा मौसमियात को झुटला दिया। नए बयान में कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि कुछ लोगों के नजदीक ये 17 इंच बर्फबारी है, माशाअल्लाह। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर भी कह चुके थे कि मामूल से ज्यादा बारिश हुई। नून लीग के शाहिद खान कहते हैं, माजी में कभी बर्फबारी में फंसकर मरी में हलाकतें नहीं हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। फैसलाबाद और शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। सियालकोट मोटरवे पर एम्बुलेंस ट्रक से टकराने से मरीज इंतकाल कर गया। गिलगित बल्तिस्तान की जिला स्टोर गजर में कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कल्लात में -8, स्कर्दू और मालम जब्बा में -5, हुंजा और चित्राल में -4, कोयटा और मरी में -3, गिलगित में -2, पेशावर में 2, इस्लामाबाद में 5, लाहौर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलिया अदालत ने टेनिस प्लेयर का वीजा मंसूख करने का हुकूमती हुक्म कल अदम करार दे दिया। जोकोविच को हुकूमती हिरासत से रिहा करने का हुक्म। ये भी हुक्म दिया कि हुकूमत जोकोविच को हर्जाना अदा करे।
जोकोविच अब ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हो सकते हैं। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन उनका वैक्सीन से इस्तिस्ना नाकाबिले कबूल करार देते हुए हुक्काम ने मेलबर्न एयरपोर्ट पर रोककर हिफाजती तहवील में होटल मुंतकिल कर दिया था। हुमायूं सईद का एजाज बरतानवी सीरीज इकराम में लेडी डायना के करीबी दोस्त और पाकिस्तानी निजात बरतानवी सर्जन डॉक्टर हसनात खान का किरदार अदा करेंगे। अदाकारा माहिरा खान ने तस्दीक कर दी, कहा वो बहुत फख्र महसूस कर रही हैं और बहुत खुश हैं। सेनेटर फैसल जावेद और कई अदाकारों ने हुमायूं सईद को मुबारकबाद दी, कहा हुमायूं सईद से बेहतर ये किरदार कोई नहीं निभा सकता। सीरीज की इंतजामिया ने अब तक खबर की तस्दीक नहीं की। सियालकोट में कल से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स ट्रायल्स के तहत ट्रायल्स का आगाज होगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए नौजवान उस्मान जाग का कहना है कि इन ट्रायल्स से नया चैलेंज सामने आएगा, जबकि लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि नया सुपरस्टार बनना है तो आइए और इन ट्रायल्स का हिस्सा बनिए। समाजी कारकुन और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय को हुकूमत ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफीर मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत वफाकी टास्क फोर्स पॉपुलेशन मीटिंग में फैसला, नोटिफिकेशन जारी।